Namaskar viewers. So CRS final report on Chandigarh Dibrugarh accident near Gonda on 18th of July 2024 has been published. This has been shared with Times of India and also officially. Now, how much fair or totally biased this report is, this is what one can only conclude after reading the entire report thoroughly. बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा इस रिपोर्ट की, किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और ये रिपोर्ट देखने के बाद यूं लगेगा आपको कि शायद कोई एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसी डिपार्टमेंट डजंट कम अंडर द परव्यू ऑफ इंडियन रेलवेज, जैसे कोई सौतेली डिपार्टमेंट नहीं होती है। व्हाट आई एम सेइंग, I will show you how it has been done in the report and why I am saying so. अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। This is the news clipping of Times of India. CRS Pro blames engineering department for Chandigarh Dibrugarh express derailment in UP's Gonda. Commissioner of Railway Safety Northeastern Railway Pranjeev Saxena found engineering department responsible for the July 18th, 2024 Chandigarh Dibru Express derailment in Gonda, which resulted in 4 passenger deaths. The accident was attributed to human error and inadequate track maintenance. Or in his final report, Time of India has a copy of the report, it says, and the CRS stated low tow load due to ineffective fittings and fastenings of rail, missing grooved rubber sole pad, and improper laying of ballast led to abnormal LWR leading to buckling of rail track. Basically, the accident was caused by human error and poor track maintenance, which led to dynamic buckling. अब डायनेमिक बकलिंग, क्योंकि बकलिंग तो बोल नहीं पाए, प्रूव नहीं कर पाए, तो डायनेमिक बकलिंग। आइए एक एक चीज जो यहाँ मेंशन की गई है। फर्स्ट इज लो टो लोड, मिसिंग ग्रूव्ड रबर पैड। जो रबर पैड की मिसिंग बताते हैं एज पर जॉइंट नोट, दैट जॉइंट नोट वाज नॉट एट ऑल साइंड बाय द इंजीनियरिंग मेंबर because the recording was done, the observations were taken in his absence. So this dissent is also available in the inquiry report as an annexure. Now next is ballast. So I will give you the visuals whether really the ballast was less, and buckling कैसे पहुंचे उस मुद्दे पे वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट करके दिखाऊंगा। 1.2.4 CRS का कहना है, रेलवे डिड नॉट गिव any prima facie cause initially, nor did it classify the class of accident, and as per NER's accident manual, this accident is of D1 class. Well, prima facie, until and unless it is obvious, normally is not given, and that too in such a serious accident, it has to be decided वेरी वेल बिफोर गिविंग सच प्राइमा फेसी कॉज। इतना जल्दबाजी नहीं की जाती है, और ये ऑब्वियस कॉज नहीं था। अगर बकलिंग का कॉज ऑब्वियस होता तो जरूर डिक्लेयर कर दिया होता। सो पहली चीज़ है, रेलवे
अधिकारियों ने जो साइट पे पहले पहुंचे, दे डिड नॉट गिव एनी प्राइमा फेसी कॉज एंड while negotiating 1 degree right hand curve number so and so, LP of the train felt heavy jerk with BP dropping and loco vibrating. Sketch of accident is placed. अब देखिए, इंजन वाइब्रेट करना शुरू किया, ब्रेक प्रेशर उसका ड्रॉप हुआ. When we asked for the event recorder which gives the air pressure dropping, air pressure values as per timing, that was not available on the event recorder. That engine does not record that parameter, it was told. तो कब उसका एयर प्रेशर ड्रॉप हुआ, nobody can say. डाटा ही नहीं दिया. और फेल्ट हैवी जर्क, तो भी एक नॉर्मल स्मूथ चलती ट्रेन में जब कुछ एबनॉर्मलिटी लाइक डिरेलमेंट आएगी तो झटके नहीं लगेंगे, तो और क्या लगेगा वहाँ पे. देयर विल बी हैवी रेजिस्टेंस, पुश, पुल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोर्सेस विल वर्क, तो ये झटके तो लगेंगे. Nature of weather was clear and the visibility good with no reported earthquakes. Rail temperature in TMS was 39 degrees. So now this is the point to be noted, my viewers. Rail temperature जो था prevailing कम distressing temperature, that was 39. दिखाते हैं आपको. अब देखिए, locomotive of BL shed was commissioned on 2002, means it was 22 years of age. The last IA on 11/7 at UMB Northern Railway, and it had air brakes but no dynamic brake. इसका डायनेमिक ब्रेक था ही नहीं, एयर ब्रेक था, मतलब इंडिपेंडेंट और नॉर्मल एयर ब्रेक. अब आप ध्यान से सोचिए कि एक लोको एक्सप्रेस ट्रेन का जिसमें ना तो एयर प्रेशर का इवेंट रिकॉर्ड होता है, ना उसमें डायनेमिक ब्रेक है, और सिर्फ एयर ब्रेक है. अब इस पैरा में CRS रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट का पैराग्राफ है. The last de-stressing was done in 10/04/24 and the TD was 39 degree. So here we can see that TD is 39 and the prevailing temperature at the time of accident is 39. So what is TD? It is the temperature at which we de-stress the LWR, and at de-stressing temperature there are zero thermal forces, and after de-stressing we fasten it to the sleepers. So here the prevailing temperature at the time of accident as well as the de-stressing temperature were same. So ये विटनेसेस हैं जिनके बारे में CRS ने उनका स्टेटमेंट लिया है. और एक स्पेयर क्रू था जो नेक्स्ट टू इंजन वाला कोच था, जिसको हम लोग LWLRRM बोलते हैं या आम भाषा में पावर कार बोलते हैं, उसमें बैठे हुए थे. तो उनका कहना है कि उनको जर्क लगा, नॉकिंग साउंड हुआ, और अब उनको लगा, वो कोच में बैठे थे, कि ये पहले गिरा, तीसरे कोच में कोई बैठा होगा, उसका कोच हिला तो उसको लगा वो भी गिरा. अब जो जिस कोच में बैठा उसको तो उसी का पता होगा ना ये गिरा. अब पहले कौन गिरा कौन नहीं गिरा ये तो बात की बात है. आगे देखिए, क्रू ऑफ अर्लियर ट्रेन्स क्या बोलते हैं ट्रैक के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट, एज 15212
एक ट्रेन डाउन गई है, मतलब डाउन मीन्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये इल फेटेड ट्रेन गई है। उन्होंने कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली, कोई जर्क नहीं मिला, उनको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। क्रू ऑफ अप BCNE जो बगल वाली लाइन में गई, उस लाइन के ड्राइवर ने भी ऑब्जर्व किया कि उस लोकेशन में उस टाइम में जब वो पास किया तो देयर वाज नथिंग एबनॉर्मल। कोई PWI वगैरह उनको दिखाई नहीं दिया, कोई स्टाफ भी नहीं था जो कोई मेंटेनेंस कर रहा हो। और क्रू ऑफ 12512 ये इन्होंने भी बोला कि कोई उनको जो है एबनॉर्मलिटी दिखाई नहीं दी। जो कोच पास जब किया है तो इनको कोई एबनॉर्मलिटी उसमें दिखाई नहीं दी। तो this is the statement given by crews which had earlier passed, which has passed by the upline, and also a witness जो पावर कार में बैठी थी। किसी को ट्रैक में इस एक्सीडेंट होने के पहले कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई नहीं दी। अब नॉमिनेटेड CLIs जो हैं, एज पर CRS जब उनको एग्जामिन किया गया तो उनको कैसा झटका कब लगता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़े बड़ों को नहीं होती। अब CLI को नहीं है तो बेचारा नहीं बोल पाया कि ये झटका किस लिए लगा है, ये ट्रैक डिफेक्ट है या गाड़ी गिरने के बाद का है या क्या है। और जो स्पीडोमीटर डाटा पारा 6.4 में इंडिकेट करते हैं तो उनका कहना है कि व्हेन डिरेलमेंट स्टार्टेड फर्स्ट लोको व्हील वाज पासिंग एट इतना। चलो लोको कहाँ था जब एक्सीडेंट हुआ? जनाब लोको के पीछे वाली गाड़ी गिरी हुई है। आइए आगे देखते हैं। सो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ कमीशन कि जब ये ट्रेन पास कर रही थी तो जहाँ खड़ी हुई है वो गाड़ी जब गिरी है 22 मीटर बिफोर दैट पर्टिकुलर मास्ट, OHG मास्ट, तो चेनेज ऑफ ट्रेन व्हील उन्होंने बनाई निकाली है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उस व्हील को जो आपकी लोको का लास्ट व्हील था, कोच का फर्स्ट व्हील था, उसका पीछे वाला व्हील, उसका पीछे वाला व्हील 17 मीटर 4 मीटर 17 मीटर 4 मीटर 17 मीटर 4 मीटर में बनाया। और उन्होंने बताया कि उनका जो प्यारा एक कीमैन था जिसकी विटनेस लेकर के ही सारी इंक्वायरी ऑलमोस्ट उन्होंने कंक्लूड कर लिया है, वो क्या था मैं उसके बारे में परिचय आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में दूंगा। और ये बता रहे हैं कि उसने जो बताया था मेरे को सांप जैसी लाइन थी, ये सांप जैसी लाइन यहाँ पे बनी है, ठीक है, इस लोकेशन पे बनी है। अब हमारा ये प्रश्न है कि जनाब वहाँ ट्रैक की हालत तो यूं आपका इंजन खड़ा था, आपको वर्सेन कहाँ से मिले? और ये वर्सेन कौन से हैं? आपने TMS से लिए। और अगर TMS से लिए हैं तो उसकी क्या वैल्यू? ओनली डाटा compiled after the accident is to be relied upon as relevant document, ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ये अजम्पशन में एक्सीडेंट की इंक्वायरी और उसके सांप बना दिए, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हमें बड़ी चकित हुए हम भी कि भाई यहाँ लोको खड़ा है, यहाँ आपका ये कोच खड़ा है, यहाँ ये आपका सेकंड क्लास कोच खड़ा है, मतलब सेकंड फ्रॉम इंजन। आपने वर्सेन कहाँ माप लिया? ये रेल की हालत देखिए, ये तो टूट टाट के बराबर हो रखी है, उखड़ी पड़ी है। ये वर्सेन कैसे मिला लिया आपने? गजब है। सो वही चीज़ जो वहाँ उन्होंने टेबुलर फॉर्म में दी थी उसको हमने ग्राफ में लिया। देखे तो सही सांप कैसा बनता है। वी plotted taking the same chainage whatever was there, 638 387, then this is at 401, then this is 407, then 424 ही मैं बोला ना आपके, मतलब 17 7 24
17 मीटर की दूरी पे उसका व्हील सेट आया, फिर ये व्हील सेट आया, और ये कर्व देखिए कितना स्मूथ बन रहा है। ये कर्व इसलिए स्मूथ बन रहा है और थोड़ा बहुत आपको शार्पनेस इसलिए दिखाई दे रही है बिकॉज द डिस्टेंसेस आर नॉन यूनिफॉर्म। कहीं 17 मीटर है, कहीं 7 मीटर है, समथिंग लाइक दैट। अगर इसको हम देखें तो ये सांप जैसा कहाँ से लग रहा है आपका, ये तो बिल्कुल स्मूथ कर्व जा रहा है। वेयर इज द सर्पेंटाइन? सर्पेंटाइन तो हम इसको बोलते हैं, दिस इज सर्पेंटाइन। कैसे भी ट्रैक पे डालो, भले सांप बना के डालो या घोड़ा बना के डालो, सांप नहीं भी बन रहा तो बनाओ। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी असलियत। वेल, दिस इज अ विटनेस whose name is आसने, द एक्टिंग की मैन। अब इन भाई साहब का थोड़ा परिचय आप सुन ले। दिस फेलो had been transferred due to various reasons from his previous section to a place distant from his home place, probably as a punishment because he was a most irresponsible, irregular, and disobedient fellow who was transferred to this section, and to revenge, बदला जिसको कहते हैं ना, he would always keep the PWIs, JEs, SSEs on their toes by giving all wrong informations and all. I would, sorry, रिकॉल माई प्रीवियस स्लाइड, जहां हमने आपको बताया था कि जो लोको पायलट्स थे, इसके पहले जो गाड़ी गई है, फिर डाउन में एक गाड़ी गई थी, फिर अप में एक गाड़ी गई थी, और खुद जो गाड़ी गिरी है उसके लोको पायलट्स ने कुछ एबनॉर्मलिटी फील नहीं की। इसके पहले गाड़ियां जो गई हैं किसी को जर्क नहीं मिला। ये भाई साहब 16 तारीख को ऐसे लाइन की हालत बताते हैं, 18 तारीख को बोलते हैं चाबियां दिख नहीं रही हैं, मतलब ERCs ढके हुए हैं, ERCs की पोजीशन नहीं है, गिरे पड़े हैं, ये हैं वो हैं। And then the poor PWI had come over there and he had taken the photographs. So this is the photograph. Now, ये जो बता रहा है यहाँ पे, ये जो बता रहा है ना तो जो कमीशन ने वो पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, ग्राफ दिखाया था, वो ना तो वहाँ सांप बना है और ना ही इस फोटो में कहीं सांप दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए फिटिंग्स ऑल इंटैक्ट, इस साइड में भी देखिए, ध्यान से देखिए, फिटिंग्स है ये स्लीपर के ऊपर, ये बोलते बाहर की दिखाई नहीं दे रही है, देखिए बाहर की कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। The ballast profile, see how it is going high, then it is coming down. Similarly here, how it is going high, then coming down. This is a proper profiling of the ballast. झूठ की तो कोई हाथ पांव होते नहीं, जितना मर्जी बोल लो। और इंजीनियरिंग को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए यही एक शख्स मिला कमीशन को, जिससे उनकी बल्ले बल्ले होगी, और बाकी सारे झूठ। उसकी 6 चार्जशीट हैं या 7 चार्जशीट है, and he had gone to the media openly to revenge his case in the form of giving all these rubbish statements about his call recordings, this and that, and always harassing the PWIs, his seniors, the most disobedient fellow, and now perhaps he is no more in the railway services, he has been removed. ऐसे आदमी के ऊपर में विश्वास करके उसकी स्टेटमेंट को बना के जबरदस्ती उससे ड्रॉ करा के, बंदा बोले भी तुम ऐसा लगाया तो वेयर इज द बैनर फ्लैग, व्हाई डिडंट यू प्लांट द बैनर फ्लैग, व्हाई डिडंट यू प्लांट द डिटोनेटर, व्हाई डिडंट यू स्टॉप द ट्रेन, व्हाई यू लेफ्ट द साइट। बहुत से क्वेश्चन है। ये देखिए, और ये फोटो कब की ली है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सेम फोटो का जब हम लोग GPS वगैरह डाटा निकाला, इट इज ऑन द सेम 16/7/24, 16, ये यहाँ डेट दी हुई 16/7/24,
8:25 में PWI आया, उसने फोटो निकाली है। एंड देन ही सेड कि कहाँ है तुम्हारा ये सब सांप? सांप भाग गया। So this is how false witnesses try to convince, and at the helm of affairs, such a dignitary who is supposed to give justice as far as the report is concerned, जिसके अगेंस्ट में सारे बोल रहे हैं उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इवन द लोको पायलट ऑफ द सेम इल-फेटेड ट्रेन सेड देयर वाज नो एबनॉर्मलिटी ऑन द ट्रैक, ही कुड सी। अरे इनका तो A1 में पास होते हैं, ये इनकी आईसाइट बड़ी शार्प होती है, इट्स नॉट लाइक अ कॉमन मैन। सो ना बैलास्ट में प्रॉब्लम है, ना बैलास्ट के प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, ना फिटिंग्स में प्रॉब्लम है, ना अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है। आगे चलिए। लो टो लोड, इतना ज़्यादा इस पे रिसर्च हुआ है, मोर देन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितनी बार उसका जो है टो लोड मेजरमेंट किया गया। और अगर मैं सारी उसकी कवरिंग करूंगा ना तो ये 1-1.5 दिन की वीडियो बन जाएगी। एंड देयर इज ए क्राइटेरिया given in the manual how to decide whether a renewal is required, और ये सारे टो लोड चेक किए गए हैं और the values are, you know, indicated. This is 1024, this is 1142, and this is also something 1024. Again here we are having some 997, then here also it is something like 905 kg। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उनके बहुत नुमाइंदे आए, उनके बहुत से सुपरवाइज़र, उनके रिप्रेजेंटेटिव कमीशन के आए, जिन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग ली और उनको अल्टीमेटली कुछ ना मिला। एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर विद इन द गिवन नॉर्म्स। सो टो लोड ऑल्सो उन्होंने देख लिया, बाहर से भी CRS टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के आए फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे, ही ऑल्सो सॉ। सबका एक ही कहना, बकलिंग को कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, बकलिंग को करना, बकलिंग को करना। कोई एक तरीका होता है ना, ऐसे आराम से कैसे कर लोगे? ये डाटा तो आप ही का दिया हुआ है, दीज आर ऑल ऑन द रिकॉर्ड। CRS ने बेसिकली लोकोमोटिव के इवेंट रिकॉर्डर से कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तो वो चले गए WSP के डाटा पे। WSP का डाटा, WSP के बारे में मैं अगर बड़ी छोटी सी बात बता देता हूँ, ज़्यादा बताऊँगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। दैट इज़ बेसिकली टू रिलीज द ब्रेक इन केस ऑफ व्हील स्किडिंग। और उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए एक एक्सल घूमना शुरू कर दिया है, दूसरा एक्सल का ब्रेक रिलीज नहीं हुआ, तो WSP विल इन लेमैन्स लैंग्वेज सेंड ए सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उसको आदेश देगा कि तुम अपना ब्रेक रिलीज कर दो, उसकी ब्रेक रिलीज हो जाएगी। व्हेन द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द टू, मान लो एक चल रहा है, आस्ते आस्ते स्टार्ट किया है, दूसरा स्किड करता है, एंड व्हेन द परसेंटेज ऑफ द स्पीड डिफरेंस इज फ्रॉम 5 to 10%, जैसे आगे वो उसको ब्रेक रिलीज करता है। दिस इज WSP एंड दिस इज व्हील स्किडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके डाटे को जाकर के बाहर से लिया, क्योंकि इंजन के डाटे में तो कुछ था नहीं, ना एयर प्रेशर मिल रहा था, ना उसका डायनेमिक ब्रेक तो काट ही रखी थी, ब्रेक पाइप प्रेशर कब टूटा वो नहीं पता चला, और कुछ नहीं पता चला। तो अब चक्का कौन सा गिरा, वो WSP से निकाला गया। वेल फाइन, वी आल्सो लर्नड अ न्यू थिंग। अब ये जो WSP का डाटा है ना, इसकी जब साइट इंस्पेक्शन की तो इसमें क्या रिमार्क हैं देखिए, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप आराम से पढ़ लेना। ये कोच नंबर A जो पहला वाला है, इसका नॉर का है, विद WSP कार्ड्स इंटैक्ट हैं, हाउएवर data download cannot be performed because the WSP panel locks the CB12A card and
the CCTV panel is unavailable. Okay, is currently inaccessible on one side due to the panel side facing downward. The orientation presents significant challenges in reaching the intersecting with the panel, thereby preventing any maintenance or inspection activities from being carried out effectively, and the CCTV panel is unavailable. A WSP make FTIL का was found to be missing its panel. Further upon inspection, it was determined that the panel had been intentionally removed. अब क्या क्या किया है क्या नहीं किया है वो मालिक ही जानता है। ऐसे पैनल के ऊपर में वो विश्वास अगर हम कर रहे हैं तो जिसका डाटा ही नहीं है, जिसका टाइम नहीं है, और यहाँ खुद लिखते हैं रिट्राइवल वाज करेक्टेड, और ये देखिए ऑल दीज वर रिट्राइव्ड 63 डेज आफ्टर द ड्रिलमेंट एंड आरटीसी। 63 डेज में उसका डाटा तो निकाल ले। आपने एक भी कोच मेजरमेंट कराया? 63 days you waited for this data to be retrieved. Great. जो असली चीज है वो नहीं आई। अब वो बोल रहे हैं कि OHE mast speedometer data shows OHE mast hit shortly after derailment. OHE mast and wheel of the train of first drilled, assuming loco first wheel was at assuming क्यों? Why assuming? assumption में हम इंक्वायरी फाइनल कर देंगे। आगे दिखाते हैं कब मास्ट गिरी है, कब मास्ट टूटी है। अरे जब आपका OHE वोल्टेज जीरो हो गया तो गई मास्ट, OHE करंट जीरो हो गया गई मास्ट। और कितने डिस्टेंस पहले हुआ है? बिफोर कमिंग द ट्रेन टू स्टॉप इट इज 46 मीटर। आपको सीधा दिख रहा है चार्ट में, अज्यूम करने की क्या बात है? जहां आपका OHE वोल्टेज जो है जीरो हो गया, उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, करंट ही नहीं है, तो टूटा। OHE मास टूट गई, कॉन्टैक्ट वायर टूट गई, पेंटो का कॉन्टैक्ट टूट गया, खत्म। अब उससे हुआ है किससे हुआ है नोबडी नोस, बट once the voltage is snapped at a particular time, this is 14:31:50, जब उसकी 53 किलोमीटर की स्पीड थी, then it hit it, and this is how many seconds is एक मान के चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सेकंड बाद। और जो 86 से 0 पे आया दैट इज 204 मीटर, और ड्रैग तो आपका सम 400 मीटर। गाड़ी तो बहुत पहले से गिरी हुई है, तो आप कैसे कह रही हो कि वो करो में जब एंट्री करी तब गाड़ी गिरी? We should go with the site condition along with the data of the locomotive. Event recorder आपके ढंग के है नहीं, वो अपग्रेड ही नहीं है। अब कर लीजिए बात। Place of first derailment. Loco pilot of the train said he heard a loud noise, heavy jerk near OHE mast. अब ये बड़े प्यार हो गया इस मास्ट के आसपास इसको। इंडिकेटिंग फर्स्ट डिरेलमेंट। जैसे उसकी गाड़ी गिरी है ना, उनको नहीं पता होता कहाँ गिरी, वो थोड़ा वो तो बचाने के चक्कर में रहते, ब्रेक मारो उसके बाद पता नहीं कौन सी गाड़ी गई, कौन सी गई, कौन सी टीपी पर, उतनी सुरती थोड़ी होती है उसको। These are all concocted stories. एक लोको पायलट जिसको धड़ाम का आवाज सुना, वो अभी बाहर जा करके देखेगा कि कौन कौन सा खंभा में सुना, वो तो मारेगा उसको वैसे ऑटोमेटिकली। स्पॉन्टेनियस एक्शन उसका यही होगा कि ब्रेक मार, और कौन सी ब्रेक मारी? डायनेमिक थी नहीं उसकी। अब बची कौन सी? एयर ब्रेक, और मारी उसने इंडिपेंडेंट लोकोमोटिव की ब्रेक मारी उसने। और दूसरी चीज, ये WSP का डाटा उसको सपोर्ट कर रहा है, इनका कहना है। और वो डाटा क्या था मैंने आपको पहले दिखा दिया ना, कार्ड वार्ड थे ही नहीं उसमें। 63 डेज बाद रिट्राइव किया। अब क्या लिखा है, क्या किया है, इट्स इन द बुक। और इमरजेंसी ब्रेक नहीं, वो इंडिपेंडेंट ब्रेक मारी है, और इंडिपेंडेंट ब्रेक कैसे मारी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगली स्लाइड में पूरा दिख जाएगा, ये देखिए। अब ये तीनों एक साथ कैसे आ गई?
ये तीनों 1 2 3 ये पैरेलल कैसे आ गई? हाउ कुड इट कम पैरेलल? This is only and only because of total rash application of locomotive brake. आपको इसको प्रूव करना था, आपने लोको व्हील चेक किए, उसमें स्किडिंग मार्क चेक किया, क्योंकि इतना रिजल्टेंट मोमेंटम होता है, ट्रेलिंग मोमेंटम, कि वो इंजन को भी स्किड करके ले जाएगा. There will be scabs, there will be skidding, there will be small flats on the locomotive tire, क्योंकि पीछे का ट्रेलिंग मोमेंटम मार देगा उसको. आगे देखिए, अब ये एक नज़ारा है इंडिपेंडेंट ब्रेक मारने का. क्या जिगजैग बना के छोड़ दिया. आराम से ब्रेक मारता है ना एयर ब्रेक, ऐसी डैमेज नहीं होती, क्योंकि एयर ब्रेक जो है आपकी रियर से टुवर्ड्स लोको आती है. दैट इज इट्स डिज़ाइन. और ये वैसा नहीं हुआ. ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब कैसे आगे वाले की स्वीयर बफिंग फोर्सेस से पीछे का रिजल्टेंट मोमेंटम ने आके बीच वाली गाड़ी को कंप्रेशन जोन बना करके लिटरली फेंक दिया. ये क्या कर रहा है लोको पायलट? ऐसी इनकी ट्रेनिंग होती है क्या? He should be given more and more training than air pilot, बिकॉज इसके एक डिब्बे की सवारी एक प्लेन में होती है और इसमें 24 डिब्बे 25 डिब्बे होते हैं. He carries more lives, 20 times 25 times more lives than the aeroplane. We need to think over it, how they apply the brakes. This is the accident sketch, and the same thing is depicted over here. You can just see how the coaches have been thrown out of the alignment while moving straight. ये resultant momentum आ रहा है, train का direction of movement, and then we have this buffing forces, independent brake, and this is all. पूरा सर्वनाश यहाँ पे हुआ है. अब ऐसे में क्या होगा? There will be high flange forces, they will uproot the rail, they will throw the rails literally. अगर कोच छटक के 10-10 मीटर दूर जा गिर सकते हैं तो एक रेल की क्या हैसियत है? रेल के वेट से कोच का वेट ज़्यादा होता है. एंड द फ्लैंज फोर्सेस जो होती हैं इतनी स्वीयर हो जाती हैं, व्हेन यू नो इट हैज़ अ लिटरल थ्रस्ट ओवर इट, वो रेल को उखाड़ के फेंक देगी. ऐसी रिपोर्टें वही लिख सकते हैं जिसने कभी तजुर्बा ना हो ज़्यादा एक्सीडेंट देखने का. दिस इज व्हाट हैज कॉज्ड द डिस्ट्रक्शन. इसको छुपाने के लिए हमारे जितने भी वहाँ मौजूद थे, लगाओ जेसीबी और टॉपल कर दो, ना रहे कोच ना रहे मेजरमेंट, सारे एविडेंस खलास, कुछ नहीं चाहिए, ढूंढते रहो. This is the way this accident has been dealt, and this is the most wrong way. गिर गई तो गिर गई, टाइम लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन इंक्वायरी का मीनिंग क्या है? टू स्टॉप फर्दर रेकरेंस ऑफ सच अकरेंसेस. लेकिन यहाँ तो डिपार्टमेंटल वाद है, तो कैसे सुधरेगा सिस्टम? डिफेक्ट्स इन रोलिंग स्टॉक. Coaches were LHB type with primary maintenance at DBRG and the secondary at CDG. As per rake link, rake had no overaged or overdue POH, IOH coaches. Nothing unusual was reported by rolling in staff of Gonda.
Joint observation did not find any fallen object from the coaches. Joint observation of unaffected portion of rake, we don't need it. उसकी मेजरमेंट हमने क्या करनी है? और PCSO authorized by GMNER has certified that all observations are as prescribed by Railway Board. अब क्या प्रिस्क्राइब है और क्या आपने मेजरमेंट ली है, I'll be just showing you. So this is Railway Board's guideline. दुख आता है ऐसा जब झूठ बोला जाता है ना, कहाँ की गाइडलाइन है ये? एक्सीडेंट प्रोफार्मा अपने आप में इसमें 3 अनअक्षर दिए हुए हैं. देयर आर रिस्पेक्टिव कॉलम्स टू बी फिल्ड इन. और ये 1 व्हील प्रोफाइल चेक्ड, बाकी क्या हुआ? 4 व्हील प्रोफाइल चेक्ड, बाकी क्या हुआ? ऑल व्हील प्रोफाइल चेक्ड फाउंड आके एंटी रोलिंग बार बेंड. आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं भाई. ऑल व्हील प्रोफाइल चेक्ड फाउंड ओके, ब्रेक गियर ब्रोकन, ठीक है. बाकी मेजरमेंट कहाँ है? नथिंग डन. किस हालत में लिए हैं ना मेजरमेंट? इस तरह आराम से सोई पड़ी है. अब इसको मेजरमेंट कैसे लेते हैं आप? इसका व्हील प्रोफाइल कैसे लिया, इसका कैसे लिया, इसका कैसे लिया, इसका कैसे लिया, और यहाँ में भी ये इस तरह से पड़ी है, इसका कैसे लिया? दिखाने भर के लिए जो है ये एक डाल दिया उसमें पैराग्राफ और बोला कि हमने मेजरमेंट लिया है. और PCSO भी बोल रहा है उस रेलवे का मेजरमेंट हमने एज पर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन लिया है. अभी गाइडलाइन यहाँ तो पढ़ी नहीं है, या पढ़ के भी झूठ बोल रहे हैं. और किसने लिया मेजरमेंट? इस तरह लिया. ये जो आपको देख रहे हैं ना श्रीमान जी, 1 मैन आर्मी, अब यही खड़े हो सकते हैं. अब दूसरा आदमी कहाँ खड़ा होकर देखेगा? आंसू पहुंचने वाली बात है. मेजरमेंट नहीं हुआ है, किसी एक का मेजरमेंट नहीं हुआ, नॉट एट ऑल. एंड द इंक्वायरी रिपोर्ट इज आउट. दिस इज द सैड पार्ट ऑफ इट. वेल फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, दिस इज द लोको. देन वी हैव द फर्स्ट पावर वैन विच डिरेल्ड. और ये लगती है दूर से आपको डिरेल हुई होगी. इट कुड बी इजिली रीरेल, और रीरेल की गई है, फिर इसको उठा के 11-12 बजे रात बाहर फेंक दिया गया, ताकि ना हम मेजरमेंट होने देंगे ना हम करने देंगे. ये सेकंड कोच ये भी आराम से रीरेल हो सकता. सी देयर वर 2 ऑप्शंस. आई एम सॉरी. फर्स्ट वन वाज, ये आपका लोको तो गिरा नहीं, लोको काट के ले जाओ, इसको रीरेल करो और ले जाओ नेक्स्ट स्टेशन में. नहीं किया गया, नहीं किया गया. ये जो आपका सेकंड कोच है, दिस वन, ये भी सेम कंडीशन में था. इसके पीछे वाले कैप्साइज से ये 2 को तो आप आराम से रीरेल कर सकते थे, नहीं किया. चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको मानते हैं हम, पुरानी कहावत है. और इसके WSP लेके हमें क्या करना है?
कौन सा चक्का पहले गिरा कौन सा नहीं, हमको मेजरमेंट दो ना, काम खलास करो। आप तो अपने खुद चक्रव्यूह में फंस रहे हो। रीरेल हुई है, फिर इसको ऑफ ट्रैक कर दिया गया जस्ट टू अवॉइड मेजरमेंट्स। नो मेजरमेंट्स, मैकेनिकल क्लीन चिट। So this is the attitude। ये है हमारे CSO साहब जो बोलते हैं ना कि हमने आज पर प्रिस्क्राइब्ड और फार्मा लिया, ये इनका प्रिस्क्राइब्ड फार्मा है। जस्ट सी, जब इनको ज़्यादा इंसिस्ट किया गया फॉर कोच मेजरमेंट, तो ये ऐसे लेटर दिए गए जिसने ब्लॉक डिमांड किया, वो भी या तो इट वाज ए टोटली कि समथिंग डिमांड ऐसी कर दो जो कोई फुलफिल नहीं कर पाए, फिर ना मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगी, या उनको पता ही नहीं है कि इसको रीरेल कैसे करना है। तो रीरेल कैसे करना है पता नहीं है, ये तो मान नहीं सकते, लेकिन कैसे नहीं करना है वो उनको तरीका आता था। 35 घंटे का ब्लॉक मांगा, हमने कहा 35 घंटे किस लिए चाहिए, आप हमको दे दीजिए ना, हम कर देते हैं। I'll get it done through road crane, only हमको OH डाउन कर दीजिए, that's all, hardly 3 hours, 2 कोच उठा के फेंक देते हैं हम। We could re-rail, we could take the measurements and do everything. Intentionally, this has been deliberately avoided, और जानबूझ करके उन्होंने 35 घंटे मांगे हैं, और 35 घंटे का कोई तुक ही नहीं बनता है। ये 35 घंटे किस लिए मांग रहे हैं, क्या करना है हमने 35 घंटे? 35 घंटे का कोई मतलब कोई रीज़न ही नहीं बनता आपका। फिर यहाँ में भी लेटर उसी दिन, एक ही दिन में दोनों लेटर दिए हैं। तो इस तरह से जो है इसको अवॉइड किया गया है, so that the measurements could not be taken and the accident can be diverted only on the track parameters which are available। वो भी नहीं कर पाए, जबरदस्ती है। It's not systematic, not technically viable। जिस कदर ये इंक्वायरी कंडक्ट हुई है, basically when we came to know about the way this inquiry is heading towards, a letter was written to the commission in terms of Railway Board's letter, that careful observation of clues and comprehensive record there is vital for accident inquiry। और फिर para 5 was quoted while analyzing mechanism of derailment, relative contribution of track and rolling stock parameters to the rail wheel interaction forces need a comprehensive analysis। So we had mentioned all the requisites given in the board's prescribed letter and in its general guidelines, along with the associated annexure for measurement of carriage. But CRS took a serious note about it, why it is being given to me and all that। कि जब अब नहीं हो रहा है, it was written on 23rd, the accident occurred on 18th। So 5 days later also, when there was nothing done, a matter of 3 or 4 hours of re-railing the power van work was involved। So everybody wants his bit of measurement, and this letter contains nothing except citing the various paragraphs mentioned which are to be considered by the inquiry committee of the inquiring officer। This implies to all this was taken exception of। कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। जो मैं लेटर की बात कर रहा था, नाउ CRS issued a letter to the concerned railway asking about publishing a notice that the inquiry is being started on
with effect from 21st of July, and anyone who has to depose, they can depose before commission. Requesting persons, giving wide publicity, और घर के आदमी मांग रहे हैं कोच मेजरमेंट, वो आप दे नहीं रहे हो। और जब आपको लेटर देते हैं 23 तारीख को, आप 21 से इंक्वायरी शुरू कर दिया, तो आपको खराब लगता है, हाई हाई मिर्ची वाली बात हो जाती है। और आप खुद अपनी रिपोर्ट में यही लिख रहे हैं, CT/NER वाइड लेटर नंबर सो एंड सो directly addressed to CRS, questioned the process and timing of inquiry. It was not a question at all. It was not asking the process or questioning the process or the timing of the inquiry. It was a request to get the coach measurement so that side by side these could also be produced. बट ऐसा तो हुआ नहीं। आपने तो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिख दिया, एक साइड में बोलते हो कि इसको वाइड पब्लिसिटी दो, और दूसरी साइड में कोई कुछ बोलता है कि इसको हम आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा सा मेजरमेंट दिला दीजिए। Exception is being taken by the commission, and this is being published in the report. Great. Well, this is the letter, and the following para in board's letter is given, and which reads, it's all in front of you. No inquiry shall be completed before complete measurement of rolling stock. And track is available and made a part of the inquiry report. तो जो PCSO बोलता है ना, मैंने as per prescribed लिया है, there are 56 columns with different parameters which are required to be filled in. खाली किसी की एक प्रोफाइल ले लिया, किसी की 4 प्रोफाइल ले लिया, किसी की 3 प्रोफाइल ले लिया, दैट इज नो मेजरमेंट। पता नहीं क्या सिस्टम चालू कर रखा है। दिस इज अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम, मॉकरी ऑफ द इंक्वायरी सिस्टम। ये जब आप रिपोर्ट पढ़े ना, 45 पेज की है, जिसमें कोच के बारे में बड़ी मुश्किल से 3 पेज होंगे। लोकोमोटिव का जिक्र किया, उसका सारा डाटा ले रखा है, जो गिरा ही नहीं। लोकोमोटिव नहीं गिरा इसमें। और जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ना इसको पढ़ने के बाद, विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, क्योंकि मेरे को भी रेल के साथ जुड़े हुए कम से कम दिस इज माई 46-47th ईयर। What are my personal observations is these are only which have been deduced from the contents that I am displaying before you. Let's have a look at it. The key issues and observations are avoidance of coach measurements. Straightway, the wheel slide protection system was taken as the basis for assessing wheel derailment. Well, fine, उसमें difference of speed से पता चल जाता है. But when the data itself has been retrieved after 63 days by this way, that way, comparing the clocks were not real time, were not managed properly or calibrated properly, and so all this gives a element of doubt. However, the power van and adjacent coach, which could have been provided critical data through direct measurements, were deliberately thrown out of the track to avoid conducting coach measurements. Both the power van and adjacent coach could have been easily derailed for proper examination, but this was intentionally avoided during the restoration process. Second is failure to conduct mandatory measurements. Despite the clear provisions under Chapter 3 of the Act, which authorize the Commissioner to inspect any railway or rolling stock involved in an accident, demand the production of any document, material or object necessary for the inquiry, the Commission failed to insist on re-railing and conducting complete measurements of at least the first and the second coach, which were visibly capable of being re-railed. It doesn't require 35 hours.
It's all absurd. The power van was derailed but was deliberately taken off track again, further reinforcing the attempt to avoid proper coach measurements. This is what has been done in front of everyone. The third vital point, unjustified dismissal of CTNER's request. The Commission was officially requested via CT's letter to take the joint measurements of the derailed coaches to provide us to help us. But the Commission dismissed this legitimate request, which is highly questionable and unfortunate. The Commission openly invites public witnesses for such inquiries, but unjustifiably rejected an official request from a qualified railway authority. Really sorry state of affairs. Well, there was too much overemphasis on toll load data. Commission had sent many teams and results I have already posted. Except one witness, and that is the favorite one, Asane. No locomotive driver saw any abnormality visually while approaching that location of track. And ERC toll load provided no meaningful insight into the cause of derailment because there are certain criteria. Then inaccurate rail temperature data and unrealistic assumptions. See, it doesn't work on assumptions. The Commission recorded prevailing rail temperature and TD both as 39 degrees centigrade, and since both the temperatures were equal, no thermal forces capable of causing buckling could have been generated under these conditions. अरे डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर ही तो उसका मतलब है स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, यहाँ जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगी उस टाइम में भी फासन द LWR to the sleeper. Or incidentally, when both were the same, how come the thermal forces came into picture? It's theoretically not possible. The contradiction invalidates the assumption of buckling and suggests that the Commission's conclusion was based on faulty data and on overly simplistic interpretation of WSB data. हालांकि WSB डाटा से आपने कौन सा व्हील रेल बार निकाल लिया, उसका टाइमिंग वाइमिंग चलो गलत मतलब था, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है, मेजरमेंट तो दो, देखिए तो सही कोच के चक्के कैसे है, कोच के स्प्रिंग कैसे हैं, रिफ्लेक्शन सिस्टम कैसा है, उसकी सेंटर ट्रैक्शन की क्लियरेंसेस कैसे हैं, उसके व्हील सेट का क्या डायमीटर है. नए में मैंने 9 mm का डिफरेंस देखा है, आपको रिकॉर्ड चाहिए मैं दे सकता हूँ. नया कोच जो 4 महीने पहले कमीशन हुआ, आई हैव दैट रिकॉर्ड विद मी. कितने रिकॉर्ड चाहिए? Incorrect conclusion on prima facie evidence. The Commission claimed that railway did not provide prima facie evidence. कैसे देता है? However, since the issue was not visibly identifiable and no proper investigation was conducted, the zonal railway was justified in withholding the prima facie evidence. ड्राइवर को नहीं लगा आगे ट्रैक बकल है, उसके पहले वाले ड्राइवर को नहीं लगा बकल है, साइड से जो दूसरी लाइन से गई है गाड़ी उसने कोई अबनॉर्मलिटी नहीं देखी, और आप कह रहे हो कि बकलिंग हुआ है, स्टैटिक नहीं तो डायनेमिक हुआ है. अरे कैसे भी प्रूव कर रहे हो, को मीनिंग है. It was not a case of try buckling as Commission erroneously concluded without complete coach measurements, which the Commission avoided perhaps at the behest of its favorites. ऐसा नहीं होता है, या तो दबाव है या ओपिनियन है. मैंने बहुत CRS इंक्वायरीज फेस की हुई है विदाउट कोच मेजरमेंट, कभी कंक्लूड नहीं हुई, एंड दिस इज परहैप्स द फर्स्ट वन
in the history. So, well, in conclusion, which is my personal view, the Commission's investigation appears compromised by deliberate avoidance of coach measurement, reliance on flawed WSP data, and failure to follow the proper technical protocols. The rejection of CTNER's legitimate request and the erroneous assumptions about the thermal forces and toll load data further undermine the credibility of the report's finding. This raises serious questions about the integrity and accuracy of the Commission's conclusions. So this is with due apology to all. I have nothing personal against anything, but this everything has been drawn from the report which has been published, and the copy is available with the Times of India, and also now it is being circulated to all concerned for acceptance. I really wonder if such type of inquiries are accepted, then the moral of the most of the persons will go down. I hope wisdom prevails in acceptance of this inquiry. Well, friends, what I believe is justice is lost when one tasked with seeking truth wears the mask of bias. A verdict born from partiality is no verdict at all. It's betrayal wrapped in judgment. ये मेरा अपना निजी विचार है. जो रिपोर्ट में लिखा है उसके साथ ही मैंने जो बोला है वही मैंने बोला है. आई हैवंट टेकन एनी पर्सनल नॉलेज. हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे कोचेस मैंने रिटेल बहुत करा करके मेजरमेंट लिया हुआ है. दिस इज एक्सपीरियंस. लेकिन ऐसी रिपोर्टों से क्या होगा, किसी एक डिपार्टमेंट का मॉरल टोटल डाउन होता है. और जब आप जानते हुए भी ऐसी रिपोर्टें एक्सेप्ट होती हैं, ये जो अधूरी हैं, विच आर इनकम्प्लीट, मैं नहीं कहता, बोर्ड का लेटर कहता है, तो कैसे उम्मीद करेगी ये एक्सेप्ट हो जाएगी. और अगर ये एक्सेप्ट भी होती हैं तो फिर अदर कोर्स ऑफ एक्शन चलते रहते हैं. मामला तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला. तो मेरी प्रार्थना है, जो मैंने कहा है ये मेरा निजी है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ के मेरी समझ में आया. आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स. इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, और मेरे बोलने लिखने से अगर किसी को कोई किसी तरह की ठेस, apologize with folded hands, but I tried to be truly as per the wordings of the report published. It has gone to the media as well. तो दोस्तों, ये आप ही का चैनल है. Please view, like, share and do comment and guide me in the right direction so that I can share more and more knowledge, more and more literature, whatever, from wherever I get. And for this, I would like you to give me a thumbs up. And with this, I take your leave. Thank you. Keep watching. Stay blessed. God bless you.